جی ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج سے حاضر ہوں آج ایک نئے مہمان سے۔ حسب وعدہ 5 بجے ہیں اور ہر شام کی طرح آج کی شام بھی آپ کی سہانی ہو، اور اس علمی ادبی پیج پر آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے، اور بالخصوص ہمارے آج کے مہمان غضنفر صاحب، جنہیں ہم پروفیسر غضنفر علی بھی جانتے ہیں، لیکن ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بڑی ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، فکشن نگار ہیں، شاعر ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، ماہر ادب اطفال ہیں، خاکہ نگار ہیں، ماہر درسیات ہیں، کیا کیا بتاؤں۔ آج ہم ان سے روبرو ہو رہے ہیں اور آپ سب ان سے فیضیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے میں پروفیسر غضنفر صاحب، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جڑ پائے ہیں۔ جی آپ کا استقبال ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں تحریک کی جانب سے۔ اور سب سے پہلے یہی کہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ جو آج ہمارے سامنے شخصیت تشریف فرما ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہوں گے، تب جا کے پروفیسر غضنفر جو اس وقت پوری علمی ادبی دنیا میں ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، لیکن ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل کب کیسے جو ہیں وہ طے ہوئے ہیں۔ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی تحریک اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا۔ میری ادبی جو شروعات یا ادبی سلسلے کی جو شروعات ہے وہ ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری سے آپ کہہ سکتے ہیں ہوئی۔ میں گوپال گنج بہار کے ایک اسکول میں داخل تھا، اس زمانے 11ویں کلاس کا میں طالب علم تھا۔ اسکول گوپال گنج کہلاتا تھا، وہ اس کا نام تھا۔ وہاں پر ایک ترغیب مشاعرہ کالج کی طرف سے، اور کسی نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا کہ آپ شرکت کرنی ہے۔ اس وقت تک میں کچھ نہیں کہتا تھا، نہ کہانی لکھتا تھا، نہ شاعری کرتا تھا۔ ہاں، اردو سے میری دلچسپی تھی۔ میں کوشش کی اور اس زمین میں 4-5 شعر ہو گئے، میں نے وہ غزل سنائی اس مشاعرے میں، اور شعروں پر مجھے داد بھی ملی۔ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب میں ہنڈی میں یعنی 12ویں کلاس میں پہنچا، میں نے ایک ڈرامہ لکھا، کوئلے سے ہیرا۔ اردو پریس کی فیسلٹی وہاں نہیں تھی، اس لیے یہ اردو میں یہ ڈرامہ لکھا گیا، لیکن چھپا ہندی میں، اور اس کو راج بال کلیان پریشد پٹنہ بہار نے چھاپا، اور یہ ڈرامہ بہت مشہور ہوا، اسٹیج بھی لوگوں نے کیا۔ کوئلے سے کا نام تھا۔ اس کے بعد میں چلا گیا گوپال گنج کالج میں، میرا داخلہ ہو گیا BA پارٹ 1 میں۔ وہاں میں نے کچھ مضامین لکھے چھوٹے موٹے اور کچھ نظمیں بھی لکھی، لیکن اس وقت تک میری نظمیں یا میری شاعر نہیں ہوئی۔ اس وقت کوئی استاد بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک استاد ضرور تھے، صابر رومانی جو تھا، ایک جگہ ہے گوپال گنج کے پاس، وہاں وہ ڈاکٹر، وہ شاعری کرتے تھے۔ میں ان سے ملا، کچھ ابتدائی غزلوں پہ اصلاح بھی کی۔ اس کے بعد میں BA کرنے کے بعد مظفر پور بہار یونیورسٹی میرا داخلہ ہو گیا، اور وہاں میں نے اپنا پہلا افسانہ لکھا، تیری سوٹ۔ اس زمانے میں وہاں ہمارے استاد ہوا حاتم رامپوری، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر قمر اعظم حاتم تھے وہاں۔ تو حاتم صاحب نے یہ افسانہ دیکھا اور کہا کہ اچھا لگ رہا ہے، تم اس کو بھیج دو۔ میں نے وہ افسانہ
टेरिकॉट का सूट के उन्वान से मैंने बढ़ते कदम दिल्ली का एक पर्चा था वहां भेज दिया, कोई आग से वो छप गया। तो ये मेरी बाकायदा पहली तहरीर थी जो छपी पक्की रोशनाई से। उस जमाने में मैं बहुत दिनों तक बिहार में नहीं रह सका, में कुछ नज़में कहीं कादरी साहब जो हमारे हेड थे उर्दू के, अख्तर कादरी, उन्होंने मेरी कुछ नज़में देखी, सुनी, तारीफ की, और उसके बाद फिर एक दुक्के शेर कहने लगा, कुछ नज़में को गज़लें हुई, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उसकी अहमियत नहीं। उसी जमाने में जेपी मूवमेंट शुरू और यूनिवर्सिटी बंद हो गई, और मेरे एक दोस्त मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नसीम आलम सिद्दीकी, उन्होंने मेरा फॉर्म एमए में अलीगढ़ में भर दिया था। इत्तेफाक से हो गया और मैं मुजफ्फर से, जब यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, तो मैं अलीगढ़ आया। अलीगढ़ आने के बाद मेरा दाखिला हुआ, और यह हुआ कि शोबे में दो उस्ताद हैं, एक अफसाने के उस्ताद थे काजी अब्दुल सत्तार साहब, और दूसरे शायरी थे शहरियार साहब। शहरियार साहब में पढ़ाते थे, तो पहले फर्स्ट ईयर में तो उनसे राब्ता हुआ, और जब उन्होंने पूछा कि आप में से कोई शेर कहता है, तो मैंने हामी भरी, आगे दिखाइएगा। मैंने अपनी गजलें दिखाई, उन्हें अच्छी लगी, इस्लाह की, और फिर शायरी का बाकायदा शुरू हो गया। मैंने उस जमाने में बहुत सी गजलें लिखी। जदीदियत का दौर था, तो जदीदियत भी आया। बहुत से हमारे दोस्त जदीदियत के रंग न चपाने की वजह से शायरी तर्क करके वो तनकीद मैदान में चले गए, कुछ छोड़ दी, लेकिन मैं लगा रहा। पर शहरियार साहब की इस्लाह की वजह से शायरी बेहतर होती गई, और उस जमाने के जितने आले थे, तहरीक निकलता था दिल्ली से, महमूद मित्तल साहब निकालते थे, इलाहाबाद से शबखून निकलता था, मालीगांव से जवाज तो बाद में निकला, एक निशांत, एक थारे साला से निकलता था। तो उन रस्ते, और फिर शायर था, और मऊ से एक रिश्ता था, उसमें, और फिर आजकल था, और नया दौर था। इन तमाम रिसाइल में लफ्जाई होती। उस जमाने में शबखून को उस जमाने में शबखून को गोया के एक सनद माना जाता था, जो उसमें छप जाए तो गोया के वो बहुत बड़ा शायर है। तो क्या कभी ऐसा भी गुमान गुजरा, आपकी भी कोई तहरीर, आपकी भी कोई तहरीर छपी? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि हम तो शायद उस वक्त मानेंगे जब तुम शबखून में छप के दिखाओ। शबखून में छप गई, फारूकी ने गजल छापी। फारूकी साहब गजल छापने के बाद, छापने से पहले ये भी कि गजनफर, तुम गजनफर अली गजनफर लिखते हो, ये बहुत बड़ा नाम रहा, तो मैंने इसमें से अली भी अलग कर दिया है, गजनफर भी हटा दिया है, मैंने सिर्फ गजनफर रखा। मुझे ये इस्लाह तस्हीह मुझे पसंद, और उससे पहले मैं गजनफर अली गजनफर लिखता था, या जिए गजनफर लिखता था। शबखून में जब मेरी हुई, उस वक्त से मैं गजनफर हो गया, और आज तक गजर हूँ, ना आगे ना पीछे, कोई लफ्ज नहीं है। तो शबखून में छपा। फिर जाहिर है कि शबखून बहुत अहम रिसाला था उस जमाने में। जो मालीगांव से जो निकलता था, वो भी आरिफ साहब निकालते थे, उसकी भी बड़ी थी, और उसमें मेरी एक नज्म छपी, हिजरत, जो फैज के जस्ट बाद और बहुत से बड़े शायरों के से पहले छपी, और लोगों ने कहा कि भाई ये तो कमाल की बात, आपकी नज्म उन्होंने पहले छाप दी। तो उन्होंने, आरिफ साहब ने कहा कि देखिए, हम नाम नहीं देखते, हम शक्ल नहीं देखते, हम तो तख्लीक, जो तख्लीक पसंद आती है उसी हिसाब से हम तख्लीक करते हैं। तो बहरहाल, तो ये अफसाने में उस वक्त मैं अफसाना लिखना मेरा बंद हो गया था। लेकिन उसी जमाने में जब मैं था अलीगढ़ में, तो एक अफसानवी नशिस्त हुई प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार की सदारत में,
اور وہ میں نے پہلی اپنی کہانی پڑھی اور اس کا کافی اعتراضات ہمارے دوستوں نے کیے اور ایسا لگا کہ بھئی ہمیں کہانی نہیں لکھنا چاہیے, چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے. لیکن میرے اندر کا جو ادیب تھا وہ خاصا مضبوط تھا, اس اعتراض سے زیادہ پریشان نہیں ہوا. اور قاضی عبدالستار کا ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ تنقید جو ہے وہ تخلیق پر تنقید اس گھوڑے کی طرح ہے جو تنقید اس طرح ہے جو تخلیق کے گھوڑے پر بھن بھناتی رہتی ہے, لیکن جو اچھا گھوڑا ہوتا ہے وہ لاز مار کے آگے بڑھ جاتا ہے. تو میں بڑھتا چلا گیا, پھر کہانیاں ہوتی چلی گئی. اور جب سے میں نکلا تو میں ہماچل پہنچا سولن میں, اور وہاں میں نے کچھ کہانیاں تو لکھی, لیکن اس وقت تک میری حیثیت اس کوئی بنی نہیں تھی. میں رسالوں میں لگا تھا, لوگ مجھے جاننے لگے تھے, لیکن ایز اے رائٹر بہت اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. لیکن جب میں ہماچل میں اپنا پہلا ناول پانی لکھا اور جیسے ہی چھپا, راتوں رات میں ہندوستان پاکستان میں مشہور تھا, اور لوگوں نے کہا اور لوگوں نے سمجھا جیسے میں بہت دنوں سے لکھ رہا ہوں یا بہت بڑا رائٹر ہوں. تو اس پانی سے مجھے شہرت ملی, عزت ملی, اور اس کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو مختصر سا سفر ہے جی جی, اس مختصر سے سفر میں بھی بہت کچھ ہے. ہمارے ناظرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس مختصر سفر میں بھی آپ نے بہت کچھ کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, ابتدا جو آپ نے کہا کہ شہریار صاحب نے آپ کو مطلب شعر کی طرف راغب کیا, آپ نے آپ کے اندر شاعری کا زیادہ رجحان آیا, اور پھر جو ایک نشست افسانوں کی ہوتی ہے تو وہاں قاضی عبدالستار صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ کہانی. تو ان دونوں میں کبھی لگا کہ میں شاعر بنوں یا میں صرف افسانے لکھوں؟ کبھی یہ تضاد ذہن میں کبھی آیا کہ ایک سے دوسرے پہ حاوی؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور یہ سوال مجھ سے ہوتا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے ادبی صلاحیت ودیت کی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاور طاقتور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ تم افسانہ نگار اچھے ہو, اور افسانہ نگار دوست کہتے ہیں کہ تم شاعر بہت اچھے ہو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے خاکے بھی بہت اچھے ہیں, اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نے جو مثنوی لکھی ہے, مثنوی یہ بھی بہت اچھی ہے. تو گویا میں بیک وقت مختلف اصناف میں اظہار کر سکتا ہوں, یا میرے اندر وہ رہی کہ میں مختلف وسیلوں سے بات کہہ سکوں. یہ اور بات ہے کہ کبھی کوئی وسیلہ زیادہ پاورفل ہو کے آیا, کبھی کوئی وسیلہ, یا کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ میں نے کسی موضوع پر نظم لکھی اور بعد میں وہی نظم افسانہ بن گئی, یعنی وہی افسانہ بن گیا. اور یہ بھی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, بعض لوگ خوش بھی ہوتے ہیں کہ میں نے پہلے افسانہ لکھا, پھر اسی موضوع پر ایک ناول لکھ دیا. اور ایسا میں نے 2 بار یا 3 بار کیا. پانی پہلے ایک افسانہ تھا, پھر وہ ناول بنا. اسی طرح بشمنتھن پہلے ایک افسانہ تھا, پھر وہ ناول بنا. اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیوں ہوا؟ تو میں نے جو اس پر جو میں نے غور کیا تو مجھے یہ لگا کہ کبھی کبھی آدمی کو یا فنکار کو کوئی موضوع, کوئی باہر کا دباؤ ڈالتا ہے, اور جلدی میں وہ اظہار کر دیتا ہے. تو جلدی ایک افسانہ کسی موضوع پہ ہو گیا. اب جب میں نے افسانے کو پڑھا تو لگا کہ بہت کچھ جو میں کہنا چاہتا تھا, بہت سے پہلو جو میرے ذہن میں اب بھی موجود ہیں, وہ اظہار نہیں پا سکے ہیں. تو کرنا شروع کیا, اور معلوم یہ ہوا کہ وہ افسانہ کے اندر ناول بننے کی صلاحیت تھی, قوت تھی. وہ جلدی میں افسانہ بن گیا, اور پھر وہ ناول بن گیا. جب ناول بنا تو افسانے سے وہ بہتر ثابت ہوا, اس لیے اس کا کینوس بڑا ہو گیا, اور اس میں وہ تمام چیزیں جو میں
में छोटे से मुख्तसर से अफसाने में नहीं कह सका था, वो तमाम उसमें शामिल हो गई आ गई। फिर नावल का हम कह सकते हैं, जी जी, मैं क्या मतलब हम या आप, ये मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया अफसाने की शक्ल में, और फिर उस पे एक बड़ी इमारत आपने नावल की सूरत में तामीर कर दी। जी हाँ, ये सब के साथ नहीं, कुछ मौजू कुछ अफसानों के साथ ऐसा हुआ। तो ये तख्लीकी प्रोसेस बहुत पेचीदा अमल होता है, यानी आप एक ही फनकार है, एक ही तख्लीकार है, लेकिन कभी तख्लीक के साथ उसका प्रोसेस अलग होता है, दूसरी तख्लीक के साथ दूसरा जाता है, तीसरी तख्लीकार के साथ तीसरा होता है। और ये पेचीदा यूं है कि कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि असल यानी आपने जिस मौजू पर लिखना शुरू, मालूम हुआ आगे चल के, या कहानी जब बनी या नज़्म मुकम्मल हुई, तो पता चला कि वो मौजू तो कहीं है, असल मौजू कोई और आ गया है, और पढ़ने वाले को भी यही लगा। इसलिए पढ़ने वाले कई माने निकालते हैं, जैसे गालिब के शेरों में या और बहुत से शायरों के यहाँ, तो ये कई मानी से निकाले जाते हैं कि इंसान के जहन में बहुत से ख्यालात, बहुत से वाकयात, बहुत सी चीजें होती हैं जो उसके लाशऊर में दबी हुई होती है। जब वो प्रोसेस तहकीकी अमल से गुजरता है तो कभी इधर से कभी उधर से वो ख्यालात या वो तजर्बात बाहर आने की कोशिश करते हैं, और कभी से कोई ज्यादा हावी हो जाता है, तो जिसके लिए आपने शुरू वो तो दब गया, लेकिन जिसके लिए शुरू नहीं किया वो हावी हो गया और वो गालिब आ गया, और इस तरह से कहानी का मौजू या नज्म का वो मौजू बन जाता है। लेकिन वो बात जिसके लिए आपने शुरू की थी वो बात है, वो भी खत्म नहीं होती। यानी तख्लीकी प्रोसेस जो है, तख्लीकी अमल जो है, एक पेचीदा अमल है और इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। तो सबके साथ ये होता है। तो मैंने इसलिए तख्लीकी अमल पे जोर दिया कि इसी से जवाब मिल जाता है कि हम अफसाना क्यों लिखते हैं, नज्म क्यों लिखते हैं, या मैंने कोई अफसाना लिखा उसे क्यों बना दिया। तो ये तख्लीकी अमल की बात हुई। और प्रोसेस में मैंने 9 नावल लिखे। पहला पानी लिखा, और उसके बाद मैंने लिखी, उसके बाद कहानी अंकल लिखा, फिर बिश्मंथन लिखा, मम लिखा, शोराब लिखा, दिब्बेबानी लिखा, माझी लिखा, यानी 9 नावल लिखे। और खुदा का शुक्र है कि कोई नावल या किसी भी नावल का मौजू किसी दूसरे मौजू से मेल नहीं खाता, सब अपने आप में मुनफरिद हैं। और बाज़ लोगों का कहना है कि मैंने नावलकारी में तजर्बे किए हैं, और मेरे तजर्बे यानी टेक्निक में भी हुए हैं, उसलूब में भी हुए हैं, कंटेंट में भी हुए हैं। तजर्बा अच्छी चीज़ है। अगर तजर्बा कामयाब है तो अच्छी चीज़ है, अगर कामयाब नहीं है तो जाहिर है कि वो फेलियर हो जाता है। लेकिन बड़ा अदीब या अच्छा अदीब या मुनफरिद अदीब उसी वक्त आदमी बनता है जब बनी बनाई डगर से हट करता है और वो तजर्बे करता है, ज़बान को तोड़ता है, को तोड़ता है, मौजू को तोड़ता है, समाज को तोड़ता है, कदम की तोड़ फोड़ से नई तख्लीक इमारतें तैयार करता है। अलवी साहब का एक शेर याद आ गया आपकी इस गुफ्तगू से। अलवी साहब ने कहा था ना कि चली डगर पर कभी ना चलने वाला मैं, नए अनोखे मोड़ बदलने वाला मैं। तो जाहिर सी बात है आप भी उन बनी बनाई डगर पे ना चलकर जो आपने तजर्बात किए, हम देखते भी हैं अफसानवी अदब में बहुत से तजर्बात हुए, बिलखसूस 1930 और 35 के बाद जब सर चढ़कर बोल रही थी हमारी तरक्की पसंदी, और उसके बाद अचानक तकसीम का अलमिया हमें नसीब हुआ, और उसके बाद फिर जदीदियत ने रंग दिखाया, उसके बाद माँ बाप जदीदियत, तो आज माँ बाप जदीदियत के बाद की भी दुनिया आपके सामने हमारे सामने है। इस बीच में बहुत से तजर्बे हुए, और कहीं ये भी कहा गया कि कहानी गुम गई, ठीक है ना, कहीं गुम हो गई, कहाँ गई कोई पता नहीं, कारी को पसे कुछ डाल दिया गया, क्योंकि जो तजर्बे कर रहे थे उनको लगा कि हम ही बेहतर हैं। तो इस बीच में आप कहाँ रहे? क्या आपके साथ कारी जुड़े रहे? आपका जो विजन था, आपकी जो जुबान थी, वो आपकी कहानी का साथ दे रही थी? मेरे नजदीक अदब के सिलसिले
बुनियादी बात ये है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अगर कोई तख्लीकार नहीं है, तो वो कामयाब नहीं होगा, वो फेल हो जाए। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपकी बात डायरेक्ट पहुंच जाए। अच्छा फनकार वो होता है जो अपनी बात के छुपे अंदाज से कहता है और पहुंचाता है, पढ़ने वाले को आसानी से नहीं हाथ उसका मौजू लगता है, बल्कि थोड़ी मेहनत करता है तो वो मौजू खुलता है, वो गिरा खुलती है। आदमी मेहनत से कोई चीज हासिल करता है या दरियाता है तो उसको ज्यादा खुशी होती है। तो हुआ ये कि तरक्की पसंद, ज्यादातर तरक्की पसंद अफसाना निगारों ने बहुत डायरेक्ट तरीके को अपनाया, इसीलिए वहां सतहियत आ गई, एकसानियत आ गई। और उसके बाद जब जदीदियों ने अफसाने को अपनाया या शायरी को अपनाया, तो वहां इबहाम ज्यादा आ गया, तजरीद आ गई, और कहानी जो है वो एक तरह से मुअम्मा बन गई और कहानीपन गायब हो गया। नतीजा ये हुआ कि कहानी से नींद का कट गया। तो एक तरफ एकसानियत बढ़ गई थी, सतहियत बढ़ गई थी, और दूसरी तजरीदियत के जमाने में तजरीदियत बढ़ गई थी, अलामतियत ज्यादा आ गई थी। नतीजा ये हुआ दोनों कहानियों में नुक्स पैदा हो गया और दोनों कहानियों से कारी जो है वो फेडअप, उकता। हमारी नस्ल के जो अफसाना निगार थे, उनको मैं भी हूँ, हम लोगों की कोशिश रही कि हम ना जदीदियत के भूल फंसे और ना ही मैदान जो तरक्की पसंदी का था वहां पहुंच आपको खो दें। तो हमने बैन बीच का रास्ता इख्तियार किया। हम तरक्की पसंदी से बेहतर हासिल की और जदीदियत के जो अच्छे पहलू थे उन्हें अपनाया और फिर हमने अपनी बात कहने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ हमारी कहानी जो है वो चीस्ता नहीं बन पाई, कहानी कारी से कटी नहीं, बल्कि हमारे यहाँ कहानीपन बाधा, दिलचस्पी बाकी रही। इसीलिए हम जमाने के अफसाने को या अफसाने निगारों को लोगों ने इनकी कहानियों में या इनके जमाने की कहानियों में कहानीपन वापस आ गया है, कारी फिर से जुड़ने लगा है। तो ये और बात है कि हमारी नस्ल के जो अफसानेगार थे उनको कोई बहुत अच्छा नक्काद नहीं मिला, ना ही उन तनकीदी अच्छी गुफ्तगू हुई जैसी गुफ्तगू तरक्की पसंदों के जमाने में हुई। उनके अपने अपने नक्काद थे या जदीदियों के अपने नक्काद थे। ने तो कहा भी था कि भाई आप अपना नक्काद पैदा कीजिए। हमारी नस्ल की बदकिस्मती ये रही कि हमारे यहाँ कोई नक्काद नहीं पैदा हो सका। फनकार तो अच्छा पैदा हुए, जाहिर है कि फनकारों के दरमियान कुछ राइवलरी जो होती है वो होती रही। तरक्की पसंद अफसाना निगारों में ये बात नहीं थी। उनका कोई अफसाना उनका लिखता था तो रातों रात उसको हाईलाइट करते थे, उसकी पब्लिसिटी करते थे, उसको मशहूर करते थे। यही जदियों का भी हाल था। लेकिन उसके बाद की जो नस्ल आई तो ये नस्ल अपने आप सिमट गई, अपने आप में सिकुड़ गई या अपने तक महदूद, अपने दोस्तों को या अपने दूसरे हमअसरों पर उतनी नहीं की। कुछ अफसानिगार या फनकार जरूर हैं जिन्होंने अपने अलावे दूसरों को अहमियत दी, लेकिन एक मजमूई जो सूरत बनती है वो सूरत ये है कि हम अपने आप में ज्यादा महदूद हो गए। वरना सच्ची बात यह है कि हमारे दौर में जो अफसाने लिखे गए, हर अच्छे अफसाना निगार के यहाँ एक दो ऐसी कहानियां हैं कि अगर इन कहानियों को दूसरी जबान की कहानियों के हम रखें तो उनसे 20 नहीं तो 19 भी नहीं बराबरी का होगी। और इसका सबूत ये है कि जब अतीकुल्लाह साहब ने एक 50 या 52 उर्दू कहानियों का हिंदी में एक निकाला था देश ये कथा का, तो उस पर इंडिया टुडे हिंदी वालों ने चर्चा किया और ये कहा कि इसमें बास कहानियां तो नई ऐसी हैं कि जिनको देखकर स्तब्ध में रह गया, निचकित हो गया, में पड़ गया। और वो उन कहानियों में मेरी भी एक थी, शरफ आलम ज़ौकी की भी एक कहानी थी, किसी और की भी थी। यानी नई दूसरे जबानों के लोग हमारी कहानियों पक रहे थे, उनको अच्छी लग रही थी, लेकिन अजीब बात यह है कि हमारी कहानियां हमारे अपने लोगों को ज्यादा अच्छी नहीं लगी।
तो इसका सबब कुछ नफ्सियाती भी हो सकता है, क्योंकि आपको इससे बात समझ में आ जाएगी कि जब बलराज मेहरा और कुछ लोगों ने पर एक मुज़ाकरा किया, तो बलराज मेहरा का कहना था कि कहानी छोड़ी थी, कहानी उससे आगे नहीं बढ़ी। इसी तरह हिंदी में भी एक बहस हुई थी, एक मुज़ाकरा हुआ था, जिसमें कमलेश्वर और उनके साथियों ने कहा कि हमने हिंदी कहानी को जहाँ छोड़ा था उससे कहानी आगे नहीं बढ़ी। यानी अगर वो आने वाली नस्ल की कहानियों को एक्सेप्ट कर लें तो जाहिर है कि उनकी अपनी अहमियत को लगता है कि इसे पहुंच जाएगा। तो ये एक नफ्सियाती गिरे हैं जो हर जमाने, और इस नफ्सियात का तो अमल दखल हमने बहुत अपने जमाने हमारे उर्दू वालों पर पड़ा है। मैंने देखा है कि यहाँ बहुत ही कम पजीराई होती है, हिंदी वालों के यहाँ फिर भी अभी कहीं ना कहीं वुसअत है। यही वजह है कि हमें उर्दू की इतनी रीडरशिप नहीं है जितनी हिंदी वालों की है, क्योंकि हिंदी की जब भी कभी किताब मेला लगता है तो हिंदी के 20 स्टॉल होंगे तो उर्दू के कोई 2-1, वो भी कोनों में। तो बहरहाल इस बीच में हमारे साथ बहुत से नाज़रीन जुड़ चुके हैं। पहले मैं आपका यानी आपको उनका सलाम पहुंचा दूं। बहुत से लोगों ने आपको सलाम दिया है, कहा है, और जिनमें हमीदुल्लाह खान साहब हैं, परवेज अहमद खान साहब हैं, अल्ताफ हुसैन जजुआ हैं, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी हैं, आलम बनारसी साहब हैं, सलीम मोहिउद्दीन साहब हैं, डॉक्टर फयाज रोनियाल साहब हैं, आफ्ताब मीर साहब हैं, जहरा मुस्कान है, मेरी बहन है ये, दारक गिरी हमारे भाई हैं, मोहम्मद उमर फारूक हैं, इसी तरह सलीम शाह बुखारी, सैयद सलीम बुखारी ये अलीगढ़ से हैं, शोएब खान यूसुफ जई साहब हैं, डॉक्टर मुश्ताक अंजुम साहब हैं, निखत परवीन साहिबा हैं, जाहिद हुसैन, और इसी तरह अल्ताफ अहमद चौधरी हैं, शायद आपके शागिर्द रहे हो। इन्होंने बहुत तवील सा एक मैसेज लिखा है कि आई हार्टली वेलकम टू गजनफर अली साहब, और फयाज साहब हैं, अल्ताफ चौधरी साहब हैं, और डॉक्टर सूफिया शिरीन हैं, शाह हमीम हैं, मोहम्मद इकबाल साहब हैं, और बहुत सारे नाजरीन हैं जिनके मैं कमेंट्स नहीं पढ़ सका, उनसे भी माजरत चाहते हुए, क्योंकि हमारे मेहमान की गुफ्तगू इतनी खूबसूरत थी कि मैं भी बीच में इन्हें रोकना नहीं चाहता था। लेकिन इस बीच में गजनफर साहब बहुत से सवालात जो हैं आपसे पूछे जा रहे हैं बार बार, लेकिन अब यह है कि मैं एक एक करके आप तक पहुंचाऊंगा। जी, एक तो यह है कि इन्होंने कहा है कि तख्लीक और फनकार के दरमियान तनकीद निगार का बहुत अहम रोल है या नहीं है, इस पे आप गुफ्तगू कीजिएगा। और फिर ये कहा कि कम्युनिकेशन के लिए किन बातों का ज़रूरी है लाना अपनी तख्लीकों में। फिर आला फन पारे के क्या इम्तियाज़ात हैं, यह हमारे डॉक्टर मुश्ताक वानी ने पूछा है कि किसी भी यानी तख्लीक को आला मयार तक पहुंचाने के लिए क्या इम्तियाज़ात हैं। मैं सवाल कर सारे सवाल भूल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद पहला सवाल आपका, पहला सवाल यह था कि रिपीट कर दे मुझे। तख्लीक और फनकार जो है इसके बीच में तनकीद निगार का होना कितना अहम है। अभी आपकी गुफ्तगू सही है, सवाल उभरा है क्योंकि नाकिद नहीं मिला। जी, दो तरह की राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नकाज की कोई जरूरत नहीं है, नकाज जो है वो तख्लीकार को नुकसान पहुंचाता है। इसमें हमारी आइनी आपा भी यही कहती थी, खुद काजी अब्दुल सत्तार की भी यही राय थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उस तख्लीक के घोड़े पर बैठने वाले मक्खी की तरह नकाज होता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये बायस है, ये किसी न किसी असबियत की शिकार है। नकाज की हमेशा जरूरत रही है, उसकी हमें अहमियत रही है, उसकी कदर कीमत आज भी है। लेकिन नकाज का जो मनसब है, उसका जो मकसद है, अगर वो उस मकसद को पूरी तरह से पूरा करता है, मसलन नकाज को तख्लीक, जब वो तख्लीक का मतलब करता है तो उसको ऑब्जेक्टिव होकर करना चाहिए, यानी सब्जेक्टिव होकर अगर वो करता है, मारूजियत इख्तियार नहीं करता है, फन पारे के साथ फैसला नहीं कर पाता। बहुत सी तख्लीकात जो मशहूर नहीं थे, जो गोशे गुमनामी में थे, नकादों की राय की वजह से, उनकी तनकीद की वजह से वो रोशनी और वो बहुत मशहूर हुए। फिर बहुत से गोशे कहानियों के, बहुत से पहलू, बहुत से निकात जो आसानी से वाज़ेह नहीं होते,
नक़ाद का कलम या उसका जहन उन धुंधले नुकूश को रोशन कर देता है और जरा सी रोशनी डालता है, तो वो नुक्ता जो फनकार ने पेश किया है लपेट के, वो रोशन होकर मन के सामने आ जाता है। इस तरह से तख्लीक की अहमियत और कद्र कीमत नक्काद की वजह से बढ़ जाती है। फिर नक्काद अगर रहनुमाई का काम करता है, मसलन मैं उर्दू ज़बान में कहानी लिख रहा हूँ और उर्दू ज़बान में कहानी लिख रहा हूँ, उर्दू में लफ्ज़ मौजूद है किसी बात के लिए और उसके लिए मैं हिंदी का लफ्ज़ ला रहा हूँ या दूसरी ज़बान का ला रहा हूँ, नक्काद यहाँ हमारी रहनुमाई कर सकता है कि जब आपके पास मौजूद है अच्छा लफ्ज़ मौजूद है, तो आप दूसरी ज़बान के लफ्ज़ ला के अपमान को महदूद और कमज़ोर क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरी ज़बान के लफ्ज़ न लें। दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ को हम आहंग करके अगर आप पेश करते हैं, अपना बना करते हैं, तो आपके इजहार में वसअत पैदा होती है, इजहार में रंगारंगी पैदा होती है और बहुत सी बातें जो जिनके इजहार के लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, उसके लिए हम अंग्रेजी की मदद लेते हैं या हिंदी के अल्फाज लाते हैं, या जैसे आक्रोश एक लफ्ज़ है, इसका बदल उर्दू में नहीं है। वो जो गुस्सा, वो जो चीज है आक्रोश, वो गुस्से में, गैज़ो गज़ब में नहीं है। इसी तरह से संस्कार है, मतलब इस तरह से उर्दू के बहुत से लफ्ज हैं जो हिंदी में बदल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि नक्काद न सिर्फ ये कि फन पारे को समझने में मदद करता है, उसकी तफहीम, उसकी तहसीन में, बल्कि उसके कद्र कीमत के तय्युन में मदद करता है और तख्लीकार की रहनुमाई का काम भी अंजाम देता है। अगर वो सही मानों में नक्काद है तो वो उसकी अहमियत, उसकी कद्र कीमत है। लेकिन अगर वो बाइज्ड है, अगर वो ईमानदार नहीं है, अगर वो मारूजी नहीं है, तो उससे तख्लीकार के तख्लीक को नुकसान पहुंचता है और तख्लीकार बिदकता है, उससे खफा होता है और उसको मक्खी और जाने क्या क्या कहने पर मजबूर होता है। जी दूसरा सवाल बताएं। बहुत खूब। जी दूसरा सवाल है कि कम्युनिकेशन के लिए, यानी हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वसीले के तौर पे, कम्युनिकेशन के तौर पे या इजहार वसीला बने किसी भी तख्लीक में? बहुत 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 उम्दा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अदब क्या है, जो है वो जबान के वसीले से हम तक पहुंचता है जी। और जबान क्या है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है। तो हमारे पास कुछ महसूसात होते हैं, हमारे पास कुछ तजर्बात होते हैं, हमारे कुछ अपने ख्यालात होते हैं। उन तजर्बात को, उन मशाहदात को, उन ख्यालात को हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास वसीला पावरफुल नहीं है, मुअस्सिर नहीं है, या हमारा कमजोर है, तो हमारा कम्युनिकेशन फेल होगा, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अदब में या किसी भी फाइन आर्ट में वसीले का, यानी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर कम्युनिकेशन बेहतर है, आपकी तख्लीक आपके दिमाग में, दिल में उतरेगी और उसका असर दिखाई देगा। और अगर कम्युनिकेशन कमजोर है या मुनासिब और मौजूद नहीं है, आपकी बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। नतीजा का कि इल्जाम लगेगा आपकी तख्लीक को, या फिर इल्जाम लगेगा उस पर कि वो समझना नहीं जानता। जैसा कि जदीदियों ने कहा कि हमारा जो कारी है वो समझ है कमजोर है, हमारी चीजें उसकी समझ में नहीं आती। तो या तो इल्जाम उधर, अच्छा कारी ने कहा कि नहीं आप लिखते हैं इतना मुबहम, इतना तजरीदी कि हमारी समझ में, हमारी हड्डियां चढ़क जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी कम्युनिकेशन फेल होता है, कमजोर होता है, या मुबहम होता है, या तजरीदी होता है, तो तख्लीक अपना मनसब पूरा नहीं कर पाती। इसका मतलब ये नहीं तख्लीक को डायरेक्ट होना चाहिए, बहुत वाज़ेह होना चाहिए। मैं वजाहत, सराहत का भी कायल उस तरह से नहीं हूँ जिस तरह से नस्र में हम करते हैं। अदब में इशारा जरूरी है, अदब इशारे का आर्ट, और शायरी में इशारा ज्यादा होता है। तो आप शुगर कोटेड, यानी अदब में आप ऊपर से कुछ जब तक लगाएंगे नहीं, तब तक आपके अंदर की जो कड़वाहट है वो दूसरे में दाखिल नहीं होगी। तो आप अगर
किसी के अंदर से फास्ट आवाज निकालना चाहते हैं, कड़वी दवा उसको देना चाहते हैं, तो कड़वी दवा को मीठा बनाकर आप पेश करेंगे, तब तो वो दवा अंदर जाएगी और असर करेगी। तो इसलिए अब कम्युनिकेशन को पावरफुल कैसे बनाएंगे, यही आपका एक सवाल का एक हिस्सा था। जी देखिए, इसके लिए जरूरी है कि जो आपके पास डिक्शन है, वो लफ्ज हैं, जो लफ्जियात है, वो ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास ख्यालात साइंटिफिक हैं, नए ख्यालात हैं, टेक्निकल ख्यालात हैं, और आपके पास अल्फाज कम हैं, टेक्निकल अल्फाज नहीं है, उनके इजहार के लिए अल्फाज नहीं है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए डिक्शन को है, जिस लफ्ज के लिए, जिस ख्याल के लिए लफ्ज नहीं है, उस लफ्ज के इख्तरा करना, उसको गढ़ना है। नए, अच्छा, पुराने इस्तिआरे, पुरानी तशबीहें वो अपना मानी खो देते हैं या असर खो देते हैं। तो जब तक इनफरादियत, मुनफरिद अंदाज, नादिर तशबीह, जिद्दत जब तक आपसे या तरकीबों में नहीं होगी, उस वक्त तक कम्युनिकेशन जो है खूबसूरत नहीं होगा, मुअस्सिर नहीं होगा। तो खूबसूरत और मुअस्सिर और पावरफुल कम्युनिकेशन के लिए और इब्लाग के लिए जरूरी है कि आपके पास अल्फाज का सरमाया हो, आपके पास आपकी कुव्वत मुतखय्यला जो है वो पावरफुल हो, ताकि वो सांप, रस्सी को देखकर सांप की तस्वीर पेश कर सके, चेहरे को देख के चांद को सामने ला सके, या खराब चीज देखकर उल्टा तवा रख सके। ये कुव्वत मुतखय्यला का काम है। तो कि जो कुव्वतें हैं, कुव्वत मुतखय्यला, कुव्वत एहसास, कुव्वत ज़बान, ये और कुव्वत अगर ये सारी कुव्वतें ताकतवर हैं, पावर हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप चीजें पढ़ें, तरह तरह के उसलूब आपके सामने हो, के इजहार के नमूने आपके पास हों, और फिर आप प्रैक्टिस करें, मशक करें कि एक बात की तरह से कह सकें। मसलन मैं एक ही बात को मैं कहता हूं कि उसके गाल अच्छे हैं, उसी बात को कहता हूं कि उसके रुखसार गुलाब की तरह हैं, उसी बात को मैं कहता हूं कि उसके आरिस अंगारे की तरह हैं। तो एक ही बात को आप मुख्तलिफ तरह से कह रहे हैं। तो मुख्तलिफ वसीले आपके पास हों, और मुख्तलिफ वसीले उस वक्त होंगे जब आपके पास अल्फाज होंगे। एक इस सिलसिले में छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बात बहुत वाज़ेह हो जाएगी। एक फिल्म थी कभी कभी, उस कभी कभी में शशि कपूर से राखी हीरोइन है, राखी कहती है कि मेरी आंखों की तारीफ, ठीक है। तो शशि कपूर कहता है कि मैं कोई शायर तो नहीं हूं कि तुम्हारी आंखों की हावड़ा का पुल बांध दूं। वो ये भी कह सकता था कि मैं नहीं हूं तो मैं बढ़ा चाह के, लेकिन वो हावड़ा का पुल बांधने की एक पैकर ला के रख दे रहा, एक ऐसा पैकर पहले से मशहूर है। फिर वो जिद करती है कि नहीं, करो करो करो। तो कहता है कि तुम्हारी आंखें ऐसी हैं जैसे गरीब के झोपड़े में लालटेन। फिर वो एक इस्तेमाल करता है, फिर वो कम्युनिकेशन को, वसीले को बेहतर बनाता है। तो ये आपको गुर आना चाहिए कि आप सादा बात को रंगीन बनाकर या अलामती बात को आसान बनाकर या आसान बनाकर अलामती बनाकर उसको पेश कर सकें। तो ये कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर तख्लीकार के पास ये पावर नहीं है तो वो बहुत नहीं हो सकता। तीसरा सवाल आप बताएं। आला पाए के फन पारे में यानी क्या इम्तियाजात हो सकते हैं अगर हम तलाश करें? ये डॉक्टर मुश्ताक वानी का कहना था कि किसी भी फन पारे में आला इम्तियाजात। अब देखिए, आला इम्तियाजात तो मतलब हर जमाने में आला इम्तियाजात हो सकते हैं। हर जमाने का आदम मुख्तलिफ हो सकता है, और आप ये कह सकते हैं कि ज़बान के इम्तियाज़ात अलग हैं, हर ज़माने के अलग के इम्तियाज़ात अलग हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातें अच्छे फनकार के लिए ज़रूरी हैं। उनमें से एक बुनियादी बात मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में। जी, इनका सवाल मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। ये कह रहे हैं कि मेरा एक सवाल ये है कि आला फन पारे के
یا ادب پارے یا فن پارے کے امتیازات کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی معراج کمال کا ادب کب تیار ہوتا ہے؟ میں اسی سوال کا جواب کر رہا ہوں کہ اعلیٰ ادب جو ہے وہ معمولی موضوعات پہ نہیں بنتا، موضوع بہت اعلیٰ ہو، بہت اہم ہو۔ اگر آپ معمولی موضوع پر چاہیں کہ بہت اعلیٰ ادب لکھ دیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے وہ ادب، وہ تخلیقات زیادہ اچھی ثابت ہوئی ہیں اور ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں جن میں اعلیٰ ویلوز، اچھی قدریں، یونیورسل قدریں جو ہیں وہ داخل ہوئی ہیں۔ تو ایک تو بڑا موضوع ہونا چاہیے، چھوٹے موضوع پر، علاقائی موضوع پر، ہنگامی موضوع پر بڑا ادب ہو سکتا۔ مثلا آپ کہیں کہ ابھی یہ جو فساد ہوا، اس پہ اسی فساد پہ یا اسی جھگڑے پہ کوئی، جیسے کہ عام چلن ہے کہ فوراً، جسے کورونا ہی ہے، اس پہ آپ کہتے ہیں لوگ نظمیں لکھ رہے ہیں، تو اتنی جلدی نظمیں لکھتے ہیں تو جب کورونا ختم ہو جائے گا تو اس کی تو اہمیت ختم ہوگی۔ تو وہ موضوع جس کے جو ہمیشہ رہیں یا جن کے امکانات ہمیشہ رہیں یا جن کے اثرات ہمیشہ باقی رہیں، وہ اس موضوع کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ اچھوتا بھی ہو، ایسا نہیں کہ وہ دہرایا گیا، کیونکہ کسی موضوع کو بار پیش کریں گے تو اس کا انوکھا پن، اس کی ندرت ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ بڑے ایونٹ پہ بڑا ادب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ شاہنامہ اسلام دیکھ لیجئے، بھارت دیکھ لیجئے، ایون جو ہندوستان اور پاکستان کا جو بٹوارا ہوا، اس کی جو ہولناکی ہوئی، جو ہولناکی آج بھی نظر آ رہی ہے، اس آج بھی مرتب ہو رہے ہیں، اس کا خمیازہ آج بھی لٹ رہے ہیں۔ تو ایسے موضوع پر جو ہے بڑا، یعنی نمبر 1 کہ موضوع بہت اہم ہو، امپورٹنٹ ہو، ہنگامی نہ ہو، وقتی نہ ہو، اس میں یونیورسل اپیل ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یونیک، اس کے اظہار کا طریقہ عام نہ ہو، مختلف ہو۔ غالب اس لیے بڑا ہوا کہ اس نے اپنے زمانے کے سانچے کو توڑ دیا، اپنے لیے نیا سانچہ بنایا، جدت ترازی کی، نئے لفظ بنائے، نئی تشبیہیں لے کے آیا، نئے استعارے گڑھے، نئی ترکیبیں بنائیں اور اسلوب کے نئے نئے طریقے اپنائے، استفہامیہ انداز، تب جا کے غالب بنا، ورنہ دوسرے شاعروں کی طرح وہ بھی ایک کونے میں سو رہا ہوتا۔ اقبال بھی اسی لیے بڑا شاعر ہوا، اس نے ایک یونیورسل موضوع کو، ایک فلسفے کو پہلی بار اردو شاعری میں داخل کیا، منظم فلسفے کو، اور اس فلسفے کے سارے جو ساری سطحیں تھیں وہ سب کھنگا لی، اور اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے اسلوب اپنائے۔ تو نیا ڈکشن ہونا چاہیے، موضوعات نئے، ڈکشن نیا، بلند میں ہو، جدت ہو، جدت ادا ہو، جدت خیال ہو، اور مطالعے کے ساتھ مشاہدہ بھی ہو، انفرادیت بھی ہو۔ بہرحال بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ تو دیکھیں، یہ تو ہر ادب کے لیے مشاہدہ تجرباتی تو ہے ہی، تو ٹیکنیک جو کہتے ہیں نا وہاں پہنچے کبھی، جی وہاں، اسی لیے جو جدت طبع جس میں اندر نہیں، وہ بڑا نہیں ہو پاتا۔ جتنے ادیب پیدا ہوئے ہیں بڑے، وہ اپنے زمانے سے الگ ہٹ انہوں نے راہ نکالی اور تقلید نہیں کی، اختراع سے کام لیا، جدت سے کام لیا، اسی لیے اجتہاد سے کام لیا، اسی لیے وہ بڑے ہوئے۔ تو یہ نیاپن بہت ضروری ہے کہ آپ اس بیچ میں اس بیچ میں ہمارے ساتھ بہت سے ناظرین جڑ چکے ہیں، اور کچھ کا آپ تک پیغام پہنچانا بہت ضروری رہتا ہے۔ آئمن صاحبہ ہیں، آئمن امرین، یہ جی عمان سے ہیں، ولا جمال یہ مصر سے اس وقت آپ کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، ظہیر انور صاحب ہیں، سید انجم رومان صاحب ہیں مغربی بنگال سے، فیاض خان صاحب ہیں، تو اس طرح سے پروین احمد خان ہیں، مبارک حسین ادب نواز ہیں،
बहुत से नाइला बतूल हैं, बहुत से नए नाम जो इस वक्त हम निगार अजीम साहिबा आपको देख रही हैं, वो कह रही हैं कि माशाल्लाह भाई मुबारक हो। तो ये तमाम तर नाम मैं शुक्रिया। आप तक इसलिए भी पहुंचा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सवालात हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का हौसला बख्शते हैं। वला जमाल ने कहा है कि उन्होंने गजनफर साहब के एक नावल यानी मांझी का तर्जुमा उर्दू से अरबी में किया है, तो पहले आपको मुबारक हो। तर्जुमा मुश्किल था क्योंकि गजनफर साहब बहुत से हिंदी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लेकिन नावल बहुत उम्दा था। तो बहरहाल आपका एक नावल यानी हमें मालूम हो गया कि मांझी जैसा नावल जो उर्दू से आज अरबी में पहुंचा है, ये आपके इस कहूँगा कि बुलंद तखय्युल की कार फरमाई है जो हमारा अदब आज मिस्र तक पहुंच रहा है। तो इस बीच में हम ये ना इसमें जी 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 मेरे दो नावल और हैं जो हिंदी में आ चुके हैं, दिव्यवाणी और कहानी कल, ये हिंदी में भी आ चुके हैं। बहुत अच्छा। यानी कि आप वही जैसे हम कभी पढ़ते थे जीते जी तो नहीं देख पाए, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे वो हमारे कृष्ण चंद्र हो, कि भाई उनकी कहानियां जो है बहुत सी जुबानों में तर्जुमा हुई हैं। तो बहरहाल आज वही शख्सियत हमारे सामने है जिनको हम जीते जी देख भी रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं और उनके ख्यालात से लहमेज हो रहे हैं। हमने आज की गुफ्तगू को अभी इख्तिताम तक तो पहुंचाना नहीं है, चूँकि अभी वो मौजू जो हमने इश्तिहार में आवेज़ा किया था, जो अनवान था, वो है दर्स व तदरीस में अदब इत्तफाल की अहमियत। यानी ये जो शख्स शायरी से शुरू होते हुए ड्रामा नवीसी और नावल निगारी और अफसाना निगारी करते करते ये अदब इत्तफाल तक कैसे पहुँचे हैं और दर्स व तदरीस में फिर अदब इत्तफाल की क्या अहमियत है, इसे भी हम लेके चलें। फिर तो आपका कलाम भी अभी सुनना है, चूँकि जिस शायर से बात शुरू हुई थी उसी शायर तक पहुँचेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दर्स व तदरीस में अदब इत्तफाल की अहमियत आज के दौर में बहुत मुश्किल फ़न है। हम बड़ों के लिए लिख सकते हैं, हम ख़वातीन के लिए लिख सकते हैं, हम गरीब किसान मजदूर के लिए लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए लिखना यानी एक माहिर नफ्सियात का होना ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए चाहूँगा कि आप इस पे वजाहत करें कि दर्स व तदरीस में अदब इत्तफाल की अहमियत। ये बहुत अच्छा मौजू है, इसके इंतखाब पे मैं आप लोगों को दाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बुनियादी मौजू को उठाया है। अगर बच्चे अदब नहीं पढ़ेंगे, बच्चे जबान नहीं सीखे, तो बड़े होकर अगर जबान नहीं आती तो गूंगे होंगे, और अदब नहीं जानते हैं तो बेअदब हो जाएंगे। तो बाअदब होने के लिए और मौसर इजहार के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को अच्छी तालीम जबान की दें, और जबान तालीम के लिए जरूरी है कि अच्छा किताब हमारे पास हो। अजीब इत्तेफाक है, मैं हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम इदारों के निसाबात प्रोग्राम्स होते हैं उसमें शरीक होता रहा हूँ, आज भी होता हूँ, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अच्छी तख्लीकात बच्चों के लिए नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिल पाती कि हमने बच्चों अदब पर तवज्जो नहीं दी। हम सोचते हैं कि अच्छा अली लिखेंगे, अली बे की किताब लिखेंगे, अच्छा बच्चों के अदब लिखते हैं, इसकी क्या अहमियत है, ये कह के हम उस अदब को कमजोर हैं, उसकी अहमियत को घटा देते हैं, जबकि जरूरी है कि वहां का अदब जो है वो ज्यादा मुअस्सर और बेहतर। अब एक बुनियादी बात मैं बता, मेरी 3-4 किताबें हैं, बहुत सोचा है, पढ़ाया भी है, ऑब्जर्व भी की, और किताबें भी लिखी हैं, मज़ामीन भी लिखे हैं, मेरे अपने पेशेंस हैं। तो जाहिर है कि ये ऐसा टॉपिक है घंटों आदमी इस पर गुफ्तगू कर सकता है। मैं बहुत इख्तिसार में अपनी बात कहूँगा कि किसी भी दर्स तदरीस के काम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि उसका निसाब बेहतर हो, और निसाब बेहतर कैसे बने इसके लिए जरूरी है कि 3 बातों का ख्याल हो। नंबर 1, लर्नर कौन है, तालिम कौन है, पढ़ने वाला कौन है। नंबर 2, निशाना क्या है आप,
क्या पढ़ाना है, टारगेट क्या है, और उस टारगेट को, निशाने को कितनी मुद्दत में तय करना चाहते हैं। अगर ये पता है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये कोर्स 1 साल का है और इसका मकसद उनको इस काबिल बनाना है कि वो पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें, ठीक है। अगर है कि हमारा जो लर्नर है उम्र 8 साल तक है, 5 साल से लेके 8 साल तक, यानी वो इब्तदाई दर्जात के बच्चे हैं। तो जब वो ये पता चल गया कि ये इब्तदाई दर्जात के बच्चे हैं, तो हमको ये हो जाता है कि इब्तदाई दर्जात या 7 साल के बच्चों का के डिक्शन है, यानी वोकैबुलरी कितना होगा, कितने अल्फाज होंगे, 200, 300, 400, 500, कितना, ये बहुत आसानी से आप तय कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि उनको सिर्फ 200 लफ्ज उनके पास हैं और वो 200 लफ्जों की एक फहरिस्त है, मसलन माँ बाप से मुताल्लिक अल्फाज, घर से मुताल्लिक अल्फाज, स्कूल से मुताल्लिक अल्फाज, जिस्म के पार्ट्स से मुताल्लिक अल्फाज, इनर आउटर सब, ये सब मिला के उनको 150-200 अल्फाज उनके पास हैं। अब अगर आप कोई नज्म उन पे लिखते हैं या कहानी लिखते हैं और इन 200 से ज्यादा अल्फाज जो आगे उम्र के बच्चों के लिए हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो कम्युनिकेशन कमजोर होगा, उनकी समझ में नहीं आएगा, बात सतह से ऊपर निकल जाएगी जहन से। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कितने अल्फाज में कहानी लिखनी है या कितने अल्फाज में शायरी करनी है या नज़्में लिखनी है, ठीक। नंबर 2, ये देखना है कि वो शॉर्ट टर्म कोर्स है या लॉन्ग टर्म कोर्स है। अगर शॉर्ट टर्म कोर्स है तो तवील नज़्में, तो एक ही नज़्म में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, तो मुख्तसर लिखेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि जिनके लिए हम नज़्म लिख रहे हैं उन ज़हनी सतह क्या है, उनकी दिलचस्पी क्या है। देखिए, बड़े लोग भी उर्दू सीखते हैं, तो बड़े लोग भी लर्नर्स हो सकते हैं, लेकिन उनका ज़हनी सतह वो नहीं होता जो बच्चों की सतह होती है। तो अब एक मौलवी इस्माइल मेरिट है, हमारी गाय रब का शुक्र अदा कर भाई प्यारी गाय बनाई, ये मौजू बच्चों को सूट करेगा। लेकिन अगर बूढ़े उर्दू सीख रहे हैं, आसान जबान चाहिए, लेकिन ये मौजू सूट नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों की ज़हनी सतह, उनके उम्र, उनकी हैसियत क्या है, ठीक। उसके बाद ये भी उसके देखना है कि उनकी दिलचस्पियां क्या है, किस तरह के मौज़ूआत वो पसंद करते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो रोमांटिक अशार पसंद करते हैं, बच्चे हैं तो हैरत वाले, जिसमें हॉरर हो, जिसमें ताज्जुब खेज हो, वो क्या कहते हैं, हैरत अंगेज हो, तो इस तरह के। फिर फेमिलियर हो, जिनको वो देख रहे हैं, गाय है, मनाजिर कुदरत है, मोहब्बत है, दोस्ती है। तो अगर इस तरह की नज़्में आप रखेंगे, इस तरह रखेंगे, तो निसाब अच्छा होगा। इसी तरह से ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, कि पढ़ाना है, ज़बान सिखाना है, अदब सीखना, उस एतबार से आप अपनी कहानियों खाप करेंगे। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये हो कि जब आप इंतखाब करते हैं तो पहले किस नज़्म को रखें, बाद में किस नज़्म को लिखेंगे। अगर आपने शुरू ही में मुफ्ती की कोई तहरीर रख दी तो वो भाग जाएगा बच्चा, वो रिवर्स गियर में जाना है। आज की जबान जो फेमिलियर जबान है, आज की जबान वाली कोई नज़्म पहले रखनी है और मुश्किल वाली, यानी इजी टू कॉम्प्लेक्स जाना है, ठीक है। इसी तरह से हर सतह की, यानी रीडिंग कैसे डेवलप हो, राइटिंग कैसे डेवलप हो, स्पीकिंग कैसे डेवलप, इसके लिए आपको मशकें बनानी, एक्सरसाइज बनानी। फिर ये देखना है कि जो आप में रख रहे हैं उन नज़्मों का या उन कहानियों का बच्चों के दिमाग पर, उनके जिस्म पर, उनकी रूह पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, असरात पड़ रहे हैं। यानी आप कोई नज़्म दे रहे हैं, मसलन मेरा एक नावल है कहानी अंकल,
उसमें एक कहानी अंकल है जो कहानियां सुनाता है बच्चों को। तो एक कहानी उसने ऐसी सुनाई कि खेत को जाते थे और खेतों को तहस करके चले जाते थे, गांव वाले परेशान थे। तो किसी ने उनको कहा यार एक काम करो, तुम लोग मशालें बनाओ, थोड़ा लपेट के मशालें बनाओ, और जब जानवर आए उसमें आग लगा के उनकी तरफ जाओ, वो भाग जाते हैं। जानवर जो है आग में भागता है, ठीक है। ये कहानी सुना दी गई। अब जिसने कहानी सुनाई उसके बच्चे भी उस कहानी सुन रहे थे। तो एक दिन उसने देखा कि उसके बच्चों ने पैंटे फाड़ के, कमीज फाड़ के और उसमें आग लगा के, जो कुत्ता परेशान करता था वो पीछे पड़ गया और कुत्ता भागने लगा। तो ये असरात मुरतब आई थे। तो इस तरह से ऐसी चीजों का इंतखाब करें जो आपको बेहतर बना सके। हमारे यहाँ मौलवी इस्माइल मेरेठी के नाम होगा आपने, इकबाल का नाम आपने सुना है, जानते हैं। इनकी नज़्में कोर्स में ज्यादा आसानी से दाखिल हो जाती हैं, चंद की कहानियां ज्यादा आसानी से दाखिल हो जाती हैं। लेकिन हमारी या हमारी नज़में या हमारे आज के जमाने की लिखी हुई चीजें दाखिल नहीं हो पाती, इसलिए कि हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हमारी कहानी में कोई ऐसी बात ना आ जाए कि किसी की दिल आजारी हो या हुकूमत के खिलाफ हो जाए या कोई मुश्किल लफ्ज आ जाए। इन लोगों ने मौलवी इस्माइल मेरेठी की ज्यादातर में, मैं आपको दो छोटे छोटे बंद सुना देता हूँ मौलवी इस्माइल मेरेठी की। देखिए कितनी आसान और रमा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर दिन की आने की मैं ला रही हूँ, उजला जमाने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों की बुला रही। कितनी सिंपल और रवा है। इसी तरह रब का शुक्र अदा कर भाई, इसने प्यारी गाय बना, इसने हमारी गाय बनाई, ठीक है। या घास चरी थी बन में, दूध बनी अब गाय के थन में, गाय को दी क्या अच्छी की है गोया मूरत। तो ऐसी नज़्मों का इंतखाब जिसमें रिदमिक पहलू हो, यानी नगमगी हो, मौसीकियत हो, क्योंकि बच्चों को नगमगी है, आहंग पसंद है। तो इस बात का ख्याल रखा जाए। इकबाल ने भी ऐसी नज़में हो जिसमें कहानीपन हो, मसलन पहाड़ और एक गिलहरी, एक मक्खी और मकड़ा, इस तरह की कहानियां जो इकबाल ने नज़में लिखी हैं वो तकरीबन तमाम कोर्सेज में ये दाखिल है। इसीलिए दाखिल हैं कि ये बच्चों को अपील करती हैं, अच्छी लगती हैं। इन बच्चे जबान तो सीखते ही हैं, अखलाक भी सीखते हैं, उनका किरदार भी संवरता है, वो अच्छे शहरी भी बनते हैं, अच्छे इंसान भी बनते हैं। तो अदब इत्फाल की अहमियत और कद्र कीमत तालीम बालगान से, बड़े लोगों की तालीम से ज्यादा है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम बुनियाद पे जोर दें, और जब बुनियाद पे जोर देंगे, उनकी तालीम की होगी तो बड़े हो जाएंगे तो उनकी बड़ी चीज़ें भी अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे, उनके बारे में भी वो उसको अपनी सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतार सकेंगे। तो इस बात की है कि हम मौलवी इस्माइल मेरेठी क्यों, वो नफ्सियात जानते थे बच्चे, उनकी ज़हनी सतह का पता था, इसीलिए उन्होंने ऐसी ज़्यादातर नज़में ऐसी लिखी जो कोर्स में दाखिल हो जाती, बगैर सोचे समझे। इकबाल की बहुत सी नज़में शामिल हो जाती हैं, अफसर मेरेठी की हो जाती हैं। हम लोग इसका ध्यान नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि हम मुख्तलिफ मौजू को सामने रखकर बच्चों की ज़हनी सतह के एतबार से लफ्ज़ों का इंतखाब करें और उनकी दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए दिलचस्प, खूबसूरत, मुतरन्निम और मुफीद लिखें, कहानियाँ लिखें, ताकि हम अपने बच्चों के अंदर अदबी सलाहियत पैदा कर सकें और अदब का जो रोल है वो हमें अपने बच्चों में दिखाई दे सके। तो ये अदब इत्फाल की अहमियत है। इस बीच में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बीच में तारक छतारी साहब जो हैं वो जुड़े हैं, सलीम महिउद्दीन साहब हैं, रुखसाना मीर साहिबा हैं, शबाना नसरीन साहिबा हैं, बहुत से ज़हीर अनवर साहब का नाम है। लेकिन तारक छतारवी साहब लिख रहे हैं कि इस दौर में इस मौजू पर गुफ्तगू करना ये यकीनन, यानी कि आपका, हमारे मेहमान जो इस वक्त लोग देख और सुन पा रहे हैं, गज़नफ़र साहब का यानी बहुत अच्छी शख्सियत है इसके लिए। तो मैं यहाँ ये सवाल भी उभर रहा है गज़नफ़र साहब, चूँकि आप दरस व तदरीस से भी जुड़े हैं, आज हम अपने स्कूलों का मयार देख रहे हैं, सरकारी स्कूल
यानी चूँकि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम अपने स्कूलों की बात करें, लेकिन हमारे ही बहन भाई जो हैं वो गैर सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका मयार थोड़ा बुलंद है। लेकिन अंग्रेजी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उर्दू तो अब प्राइवेट जो सेक्टर में है बहुत कम देखने को मिल रही है। ये जो उर्दू की नज़में हैं, बच्चों का अदब है, ये कहाँ जाएगा? मतलब हम घरों में पढ़ाएं या इन लोगों को कहें या अपनी सरकारों से कहें कि बच्चों को, चूंकि अभी नई तालीमी पॉलिसी भी आई है जहां मादरी जुबान की अहमियत को बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा है कि वो किसी भी जुबान में हासिल कर सकता है, लेकिन बच्चों की बहुत सी मैंने देखा है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसी पे ज्यादा अहमियत दी जाती है। बच्चों के लिए जो हम लिख रहे हैं, जिसकी अहमियत को हम बहुत खुद भी मान रहे हैं, लेकिन ये पढ़ेंगे किस स्टेज में जाके? कौन है जो गैर उर्दूदा होते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई जो हम कायदा बनाए, जो हम छोटी छोटी नज़में लिखे, मौजू बहुत अहम है, बच्चों के लिए अलग मौजू है। जो नॉन उर्दू वाले होते हैं, चाहे कभी कोई बड़ा उर्दू सीखने आए तो हम उसके मौजू पे अलग बात करें। लेकिन हम अगर बिलखसूस तालीमी बच्चों की बात करें जो दरसो तदरीस से जुड़े हैं, जो स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ उर्दू तो आज बराए नाम है। तो कैसे ये चलन आम होगा? हम अपनी सरकार से कहें, अपने वालिदैन से कहें। देखिए, इस्माइल मीठी या इकबाल या इन लोगों को तब पढ़ा गया जब हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन बहुत कम थी, गैर यानी सरकारी अदारे कम थे, लेकिन कम थे। और मैं आपका सवाल समझ गया। आज का जमाना प्रोडक्ट का जमाना है, बेचने का जमाना है, सार्फियत का जमाना है। अच्छा प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे। एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। चंडीगढ़ में साड़ी सुहाग है, वहां हम अपनी फैमिली के साथ एक बार कपड़ा खरीदने, साड़ी खरीदने, हमें देखते ही उन्होंने उर्दू बोलना शुरू, और उर्दू का बैठते बैठते उर्दू के कई शेर सुना दिए। हम एक साड़ी खरीदने के लिए गए थे, 2 साड़ी खरीद के ले आए। बैंकों में लैंग्वेज ऑफिसर रखे जा रहे हैं, बढ़े, क्योंकि लैंग्वेज की अहमियत को गवर्नमेंट की है, दुनिया समझती है कि लैंग्वेज में ऐसी ताकत है कि सेल्समैनशिप के लिए बेहतर कोई वसीला हो ही नहीं सकता। और लैंग्वेज में उर्दू जैसी जबान अगर आपको आती है तो आप तो फौरन अट्रैक्ट कर लेंगे। तो कहते हैं कि उर्दू जो बोलता है लगता है उसके मुंह से फूल झाड़, और लोग उर्दू सुनते हैं, उर्दू की गजलें उर्दू की जबान सुनते हैं, उर्दू के डायलॉग सुनते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी उर्दू को बेहतर बनाएं, उसकी अहमियत को और ये बताएं कि उर्दू सिर्फ रोजी रोटी के लिए, कोई भी जबान रोजी रोटी की नहीं सीखी जाती। अंग्रेजी भी या इवन मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग भी रोजगार की गारंटी नहीं देते। ये सब तो बेचारी उर्दू से गारंटी क्यों? उर्दू तो किरदार बनाने में, अखलाक बनाने में, इंसान को बेहतर बनाने में, इंसान को खूबसूरत बनाने में रोल अदा करती है। हम अच्छी उर्दू जानते हैं तो हमारी हिंदी भी और हमारी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ तलफ़ुज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, शीन काफ को दुरुस्त रखते हैं। तो एक तो ये एहसास मिटा देना है कि ये गिरी पड़ी लोगों की जबान या पसमानदा लोगों की जबान है, ये शोरफा की जबान रही है। आज भी इसके पढ़ने वाले, इसके हम समझने वाले IAS हैं, वाइस चांसलर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। दूसरे ये कि हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहिए कि हिंदुस्तान की ये एक जबान है, आप भी इस जबान की अहमियत को करते हैं, आप भी पार्लियामेंट में इसके शेर के बगैर, राहत इंदौरी को पेश किए बगैर कोई बात नहीं होती, या इकबाल को कोट किए बगैर कोई बात मुकम्मल नहीं होती। तो आप भी जानते हैं कि ये जबान कितनी पावरफुल है कि 2 मिसरों में बड़ी बात कह देती है और बहुत कुछ कहने से हमें बचा लेती है। तो जबान इतनी ताकतवर है, तो इतनी अहम है, और जो इसी में पैदा हुई, कहीं बाहर से नहीं आई, उस जबान को बोलने के मौके मिलने चाहिए। इसके स्कूलों को बेहतर बनाना चाहिए, हिसाब को बेहतर बनाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को भी, ताकि वो उर्दू पढ़ें, उर्दू सीखें। और उर्दू सीखने वालों को रोजगार की भी कमी नहीं है। आज टेलीविजन का जो मीडिया है, आज जो फिल्म है,
آج جو اخبارات ہیں، آج جو کمیونیکیشن ہے، اس میں لینگویج کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور سے اردو کی بڑی اہمیت. تو آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھا بنے اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. اس کے لیے کچھ جو انجمنیں ہیں پرائیویٹ، ان کو بھی آگے آنا چاہیے. ایک جیسے تبلیغی جماعت والا مشن ہے، اس طرح کام کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی زبان کو محبوبہ کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. جتنا محبوبہ کے بے چین رہتے ہیں، اگر آپ اپنی زبان کے لیے بے چین رہیں گے تو کہیں سے جھمکا خرید کے لائیں گے، کہیں سے کوئی اور زیور خرید کے لائیں گے، کسی کوئی اور سنگار کا سامان لائیں گے، اور اس کو خوبصورت بنا کے کی کوشش کریں گے. تو آپ اسے محبوبہ بنائیے، پھر آپ کو یہ لطف بساط سے مالا مال کر دے گی، اور آپ کا جی ذہن ہم نے ذہن بھی اور جب دل یہ دونوں. پروگرام شروع کیا، جی جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تو بہت سے ہمارے محترم بزرگ، چاہے وہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، یا ادب اطفال سے جڑے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال اٹھائے کہ اس وقت جیسے ابھی آپ نے بھی گفتگو کی کہ اقبال یا ہم اگر اسماعیل میریٹھی یا اس قبیل کے جو بھی لوگ جو ہیں ہمارے شاعر داخل ہو پائے نصابوں میں، وہ وقت اور تھا. آج کے دور میں کیا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو ایسی نظمیں لکھ پائے، ایسی غزلیں لکھ پائے، یا یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اس پہ محنت آج کیوں کریں کہ اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں اردو تو پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں. آج بھی کچھ شاعر لکھ رہے ہیں. خود جب میں نے دیکھا کہ کوئی اچھی تخلیقات نہیں مل رہی ہیں، تو میں ہوا اور میں نے سخن اونچا کے نام سے بچوں کی ایک کتاب لکھی، اور اس میں نظمیں لکھی، کہانیاں بھی لکھی، اور اس بات کا خیال رکھا کہ پہلی کلاس سے لے کے ہائر سیکنڈری تک کے طلبہ کے ذہنی سطح کا خیال رکھا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اہمیت دیں، اس کی پذیرائی کریں. آپ کے پاس ایک چینل ہے، آپ کے پاس ایک میڈیا ہے، آپ کے پاس ایک ذریعہ ہے. آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ کسی انٹرویو کے بجائے آپ 10 شاعروں کو انوائٹ کریں اور موضوع دے دیں، جیسے کہ اس زمانے میں حسین آزاد کے زمانے میں مشاعرے ہوتے تھے موضوعاتی، ان کو آپ موضوع دے دیے کہ اس وقت کے جو موضوعات ہیں، پریاورن ہے یا یونٹی ہے، یکجہتی ہے، دیش بھکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، انسانیت ہے، اس پر آپ موضوع دیں اور کہیں کہ یہ آپ نظم لکھیں 8ویں پہلی کلاس 1 سال کے 3 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر تک کے بچوں کو سامنے رکھیں، اور اس پر آپ نظم لکھ کے لائیں، اور آپ کچھ پیراگراف پیمانہ بنائیں، کچھ کرائٹیریا بنائیں، ان کو دیں کہ صاحب انہیں باتوں کا خیال رکھیے. جو بیسٹ نظم ہو 1 2 3 اس کو آپ انعامات دیں، اور کہیں کہ صاحب ہم آپ کی اس نظموں کو کسی اسٹیٹ کے کورس میں یا کسی ادارے کے نصاب میں ہم داخل کرانے کی کوشش کریں گے. تو آپ دیکھیے 2-4 پروگرام کر کے آپ کے پاس اچھی نظمیں آتی ہیں کہ نہیں، اور آتی ہیں تو اس کا استعمال کیجیے. ضرور بہت ہی خوبصورت مشورہ ہے یہ، اور اس پہ ضرور عمل کیا جائے گا، چونکہ ہم ابھی تک مشاعرہ نہیں کرا پائے ہیں. بے شک کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ مشاعرہ ضرور کرایا جائے. اس لیے بھی نہیں کروایا چونکہ مشاعرے بہت سارے اس وقت ادبی پیج جو ہیں، کل ہمیں ایک لفظ سننے کو ملا کہ اس وقت پوسٹر وار شروع ہوئی ہے. میں تفریحی مشاعرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جی مقصدی مشاعرے کی بات کر رہا ہوں، یہ اسی کا ایک حصہ ہوگا. تبھی میں نے کہا کہ وہ بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا ہے، اور اس کو ضرور عملایا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس بیچ میں ہم نے بہت سی گفتگو کی ہے، چاہے وہ فن کے اعتبار سے ہو، تدریس کے اعتبار سے ہو، فکشن کے اعتبار سے ہو، لیکن ہمارے بیچ میں ایک شاعر بھی اس وقت بیٹھا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس شاعر کی ادبی جو گفتگو رہی وہ ہم اپنی جگہ رکھتے ہیں، لیکن جو اس کا شعری سفر ہے اس پہ اگر ہم بات کریں اپنا، اگر وہ کوئی کلام ہمیں سنائیں، ہمارے ناظرین محظوظ ہوں تو وہ بھی بہت اچھا رہے گا. ابھی میں جب آپ کی وال پہ دیکھ رہا تھا تو بہت سے آپ 4 مصرے جو ہیں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا شعر ڈالتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ 2-4 غزلیں جو ہیں ہمیں ضرور نوازیے. جی دیکھیے، یہ کورونا میں کچھ کرنے کے لیے ہے تو ذہن مرے نہیں، دل مرے نہیں، ان دل کو زندہ رکھنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ لکھ اور کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں، اس کو پوسٹ کر کچھ لوگوں کو پسند آتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. میں
کچھ اشعار آپ کو ضرور سناتا ہوں. جی ایک غزل ہے, پہلے اس کے 4-5 لیجئے کہ یہ جانیے اس میں کوئی کرامت, یقین جانیے اس میں کوئی کرامت ہے, جو اس دھوئیں میں میری سانس بھی سلامت ہے, جو اس دھوئیں میں میری سانس بھی سلامت ہے. اور شعر دیکھیے کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ, جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ, یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے, یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے. اور شعر دیکھیے کہ شاید نیا کہ نظر بھی حال میرے دل کا کہہ نہیں پاتی, نظر بھی حال میرے دل کا کہہ نہیں پاتی, زباں کی طرح میری آنکھ میں بھی لکنت ہے, زباں کی طرح میری آنکھ میں بھی لکنت ہے, اور میں اس کے جھوٹ کی سچ سمجھ کے سنتا ہوں, ان کے جھوٹ کو بھی سچ سمجھ کے سنتا ہوں, کہ اس کے جھوٹ میں بھی زندگی کی قوت ہے, کہ اس کے جھوٹ میں بھی زندگی کی قوت. یہ اور زبان شعر کی دیکھیے طرح کہ یہ کس کی یہ آنکھ, شعر دوبارہ پڑھیے گا, یہ میں شعر اس دوبارہ پڑھیے گا. زبان کی طرح اس کی آنکھ میں بھی اس کے جھوٹ کو بھی, ہاں, اور نظر بھی حال میرے دل کا کہہ نہیں پاتی, نظر بھی حال میرے دل کا کہہ نہیں پاتی, زباں کی طرح میری آنکھ میں بھی لکنت ہے. اور شعر دیکھیے کہ یہ کس کی آنکھ, جو لوگ سن رہے ہیں سب کی نظر کر رہا ہوں, جی 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 اس میں جتنے لوگ ہیں اور جو شریک ہوں گے ان سب کی نظر ایک شعر ہے کہ یہ کس کی آنکھ ٹکی ہے اداس منظر پر, یہ کس کی آنکھ ٹکی ہے اداس منظر پر, کون ہے کہ جسے دیکھنے کی فرصت ہے, یہ کون ہے کہ جسے دیکھنے کی فرصت ہے, یہ کس کی آنکھ ٹکی ہے اداس منظر پر. شعر دیکھ کہ کوئی بعید نہیں, کوئی بعید نہیں یہ بھی اشتہار چھپے, کوئی بعید نہیں یہ بھی اشتہار چھپے, ہمارے شہر میں جلاد کی ضرورت ہے, ہمارے شہر میں جلاد کی ضرورت ہے, کوئی بعید نہیں یہ بھی اشتہار چھپے, ہمارے شہر میں جلاد کی ضرورت ہے. اور آخری شعر, واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. سپر تمام بدن حواس ڈال چکے, سپر بدن کے تمام بدن کے حواس ڈال چکے, بس ایک آنکھ ہے جس میں ابھی بغاوت ہے, بس ایک آنکھ ہے جس میں ابھی بغاوت. کیا بات, کیا کہنے, جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو, جو ہو رہا سے جینے کی ایک صورت. کیا بات ہے, 2-3 شعر اور سن لیجئے کہ سامان عیش سارا ہمیں یوں گیا, سامان عیش سارا ہمیں یوں تو دے گیا, لیکن ہمارے منہ سے زبان لے گیا, لیکن ہمارے منہ سے زبان لے گیا. اور یہ شعر سب کی نظر ہے کہ دفتر میں ذہن, گھر میں راستے میں پاؤں, ذہن گھر میں نگہ راستے میں پاؤں, جینے کی کاوشوں میں بدن ہاتھ سے, جینے کی کاوش میں بدن ہاتھ سے گیا, جب ہم سینے سے آگ, تب یہ شعر سنا ہے. واہ واہ, جینے کی کاوشوں میں سینے سے آگ, آنکھ سے پانی رگوں سے, سینے سے آگ, آنکھ سے پانی رگوں سے خون, ایک شخص ہم سے چھین کے کیا کیا نہ لے گیا,
ایک کیا شخص بات ہم ہے، سے چھین کے کیا کیا نہ لے، لے گیا. اب واہ، خونکار تھا مجھے ایک اژدہا ملا. خونکار تھا مجھے ایک اژدہا ملا، جب بھی خزانے کا در کھولنے گیا. جب بھی کسی جب خزانے کا بھی کسی خزانے در کا در کھول، کھولنے گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. دفتر میں زہر میں نگاہ، راستے میں پاؤں، جینے کی جینے کاوشوں کی میں کاوشوں میں بدن ہاتھ بدن سے گیا. سے. ہمارے صدر اور بھی شعبہ سننا ہوا ہے. کرتے تھے. جی جی میں آپ کو جی ضرور سنوں گا. ہمارے صدر شعبہ ہوا کرتے تھے ڈاکٹر ظہور الدین، ناقد بھی رہے ہیں، شاید آپ نے نام جی سنا ہو جی ڈاکٹر ظہور الدین. ہاں میں جانتا ہوں، تو بے شک تو خوب جانتا ہوں. ابھی انتقال فرما گئے ہیں، لیکن یہ شعر انہوں نے ہمیں ہماری کلاس میں یہ کہہ کر سنایا تھا کہ دیکھو مصروف ایسے رہا کرو کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہو، پھر راستے میں ہوتے ہو، پھر یہاں بیٹھتے ہو، ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچا کرو، تو آپ کو کبھی بھی اتنی کمزوری محسوس نہیں ہوگی جو آپ کہتے ہو کہ ہمیں لفظیات کم ہیں، ہمیں الفاظ کے معنی کم ملتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ سوچتے کم ہو. تو انہوں نے کہا کہ گھر سے نکلنے سے یعنی گھر سے لے کر یونیورسٹی تک کا سفر جو ہے ایسے پورا کیا کرو. تو یہ شعر آج آپ کی زبانی سنا، بہت میں کہوں گا کہ نصیب ہے میرا. اس بیچ میں ڈاکٹر صادقہ نواب سحر بھی آپ کو بہت تعریف سے نواز رہی ہیں. انجم بارہ بنکی ہیں، پرویز احمد خان صاحب ہیں، جنہوں نے دیر ساری داد و تحسین سے نوازا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ایک کوئی غزل اور سنانا چاہیں وہ ضرور سنائیں، کیونکہ ابھی آپ نے ایک مشورہ بھی دینا ہے ہماری نئی نسلوں کے نام کہ وہ اردو کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی ہاں، تو پہلے غزل بہتر سنا دیجیے. بہتر، 3-4 شعر اور سن لیجئے. جی 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 جی. یہ یہ تمنا نہیں کہ مر جائیں. آج کے تناظر میں یہ غزل سنیے، یہ سنیے کہ یہ تمنا نہیں کہ مر جائیں، زندہ رہنے مگر کدھر جائیں. واہ واہ یہ واہ، زندہ تمنا نہیں رہنے کہ مر مگر جائیں، کدھر جائیں. کیا زندہ بات ہے، رہنے مگر کدھر جائیں. کدھر جائیں، تو کیا شعر بات. دیکھیے کہ وہ نگار عظیم اور صادقہ نواب سحر کی نظر ہے کہ جی وہ جو پوچھے تو دل کو ڈھارس ہو، ہاں ہاں، وہ جو پوچھے پوچھے تو دل کو تو دل ڈھارس کا، ہو، اور وہ جو دیکھے تو زخم بھر جائے. وہ ہائے جو ہائے ہائے، دیکھے تو زخم بھر دیکھے، جائیں. کیا بات ہے سر، واہ. وہ جو پوچھے تو دل ڈھارس ہو، وہ جو دیکھے تو زخم بھر جائیں. اور شعر واہ، دیکھیے کہ بچ کے دنیا سے گھر چلے آئے، بچ کے اس بچ دنیا کے سے گھر دنیا چلے، سے گھر چلے آئے. گھر سے بچنے مگر کدھر جائیں، کدھر جائیں، گھر سے گھر سے بچنے مگر جائیں. کدھر بچ جائیں، کے واہ واہ، دنیا سے گھر چلے آئے، گھر سے بچنے گھر سے بچنے مگر کدھر کدھر جائیں. جائیں. کیا بات ہے، واہ. سوچتے ہی رہیں گے ہم شاید، سوچتے ہی رہیں گے سوچتے ہم شاید، ہی رہیں گے ہم شاید، وہ بلائے تو اس کے گھر جائیں، واہ 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 بلائے واہ. تو اس کے گھر جائیں. پھر سے یہ پڑھیے گا، آپ تمنا کی نہیں آواز کہ تھوڑی سی کٹ گئی تھی، پھر سے پڑھیے گا یہ شعر. سوچتے ہی رہیں ہم شاید، سوچتے ہی رہیں گے ہم شاید، وہ بلائے تو جائیں. یہ تمنا نہیں کہ مر جائیں، زندہ رہنے مگر جی. کدھر جائیں. بہت خوبصورت غزل، اور صادقہ نواب سحر نے شکریہ بھی کہا ہے. اور اس بیچ میں کیونکہ وقت بھی ہو چلا ہے، 7 بجے ابھی ہمارا ضیاء الرحمن صدیقی صاحب سے بھی ایک لیکچر ہے. تو میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ ہمارے ناظرین بالخصوص نوجوان نسلوں اور اسکالرز کے لیے کوئی مشورہ، کوئی پیغام کہ اردو کی اہمیت اور اس کی بقا اور ترقی و ترویج کے لیے کیا آپ کا خاص پیغام ہوگا؟ میں اردو سلسلے میں جو جذبہ رکھتا ہوں، جی یہ چاہوں گا، میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ جذبہ آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے. وہ یہ ہے آمین
کہ میں اردو کو اپنی محبوبہ سمجھتا ہوں. واہ. اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور اس کی حفاظت، اس کا تحفظ، اس کے حسن کی آبیاری ہمارا فرض ہے. واہ. ہمیں اردو سے جذباتی رکھنا ہوگا. اردو آنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنے رشتے کو اس سے جذباتی رشتہ بنا دیں، کیونکہ ہم تو یا ہمارے پہلے کے لوگ، ہم سے پہلے والے، ان کو اردو سے جذباتی ان کا رشتہ ہے. اسی لیے جب پر مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو ہمارا دل روتا ہے، ہمارے آنکھ میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے بچے کو ہماری زبان سے رشتہ نہیں ہے جو رشتہ ہمیں اپنی زبان سے. تو کوشش کیے کہ آپ کی خرد، آپ کا جو بچہ، اس بچے کا رشتہ اردو زبان سے ہو جائے جیسا آپ کا ہے یا آپ کے والد کا تھا. اگر یہ رشتہ جذباتی ہو جاتا ہے تو اردو زندہ رہے، اور یہ جذبات اگر کمزور ہوتے ہیں، یہ رشتہ اگر کمزور ہوتا ہے تو اردو، معاف کیجیے، شاید ہمارے پاس سے نکل جائے، ہم اردو سے مل جائیں. ہم ہی اردو کو زندہ رکھ سکتے ہیں. تو اردو زندہ رکھنے کے لیے اردو بولیے، اردو پڑھیے، اردو لکھیے، اردو کی تبلیغ کیجیے، اردو میں شعر کہیے، اردو میں عشق کیجیے. بہت بہت شکریہ. زندہ آباد. زندہ آباد آپ کے اس خوبصورت سے پیغام سے کہ اردو سے عشق کیجیے. بہت بڑا ایک سوال ہے تمام ناظرین اور ہمارے ینگسٹرز کے لیے جو ہمارے ینگ اسکالرز ہیں، چونکہ اردو ہی ہمیں تہذیب اور میں کہوں گا کہ تمدن کے ساتھ جوڑے رکھے گی. اور یہ وہی زبان ہے جس نے امن، محبت، رواداری کا پیغام دیا ہے ہر زمانے میں، اور آئندہ بھی یہ اسی طرح کے پیغامات سے ہمیں آگے لے کے بڑھتی رہے گی. تو ناظرین، اسی جذبے کو اپنے اپنے دلوں میں ضرور زندہ رکھیے گا، چونکہ عقل کہیں آپ کو شاید بھٹکا نہ دے. اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو آپ نے بے خطر کود پڑنا ہے. جی ہاں، اور اس جذبے کے ساتھ جیسا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی محبوبہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے میری بھی محبوبہ ہے، تو آپ بھی اپنی محبوبہ اردو کو بنائیں. تو ناظرین، انہی احساسات اور جذبات سے میں آپ تمام سے اجازت چاہوں گا، اور بالخصوص آج ہمارے مہمان تھے پروفیسر غضنفر صاحب. آپ نے ہمیں وقت دیا، خوبصورت اپنے تجربات سے، اپنے علم سے ہمارے ذہنوں میں بہت ہی آبیاری کی ہے، سیر اصل گفتگو ہوئی. اس کے لیے میں اپنی طرف سے، اپنی تحریک کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ناظرین، کل 5 بجے پھر ہم آپ کے روبرو کسی مہمان کو لے کے آئیں گے. جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان عرفان عارف کے ساتھ ہمارے معزز مہمان پروفیسر غضنفر صاحب کو اجازت. خدا حافظ، شب بخیر.